let's start with a new topic, that is speed. So we will see today what is speed and what is velocity. Okay, so let's define the speed first. It is a ratio of total distance covered by a body to the total time taken by the body. To the total time taken by the body. Okay, so this is the definition of speed. Speed is a ratio of distance covered by the body, total distance covered by the body to the total time taken by the body. So we'll write down the formula that speed is nothing but total distance upon total time taken. Okay, so this is the formula for the speed. Okay, now speed is a scalar quantity or vector quantity? Speed is a scalar quantity because speed does not represent the direction. So speed is a scalar quantity. आप लोगों ने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है. What is the SI unit of speed? SI unit of speed is meter per second. SI unit of speed is meter per second. And CGS unit of the speed is centimeter per second. Okay, so this is all about the speed, as you guys have seen in 10th standard in very much detail. तो यहाँ पर हम focus करेंगे the types of speed पे, ठीक है. So we will see there is how many types of speed. There is two types of speed, mainly classified into two types. One is uniform speed and another is non-uniform speed. Okay, now what is uniform speed and what is non-uniform speed? We will see that. Okay, uniform speed means the body covers equal distance in equal intervals of time, and non-uniform speed means a body covers unequal distance in equal intervals of time. Okay, we will see with an example what is uniform speed and what is non-uniform speed. Okay, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं. अच्छा, मैं इन दोनों को साथ में ही बता देता हूँ so that you guys can easily differentiate between them. So uniform speed and this is non-uniform speed. ओके, इससे आपको स्पीड का मतलब भी समझ में आ जाएगा. ओके, तो आप एक स्पीड की रिवीजन भी हो जाएगी. तो यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे. ओके, सो फर्स्ट वी विल लुक फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड एंड देन वी विल गो फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पर हमने क्या देखा? बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. in equal intervals of time. और यहां पर हम क्या देखेंगे? बॉडी कवर्स unequal distance, body covers unequal distance in equal intervals of time. Okay, we will see the example to understand this. ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, ठीक है. For example, if this is a number line, this is the origin 10, 20, 30, 40, 50 and so on. The unit is meter. Okay, so -10 and -20. Let's come over here also. Non-uniform speed में भी हम एक लाइन ग्राफ बना देंगे. So 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is -10 and -20 and so on. Okay, now suppose there is a body which is at origin. अभी वो बॉडी कहाँ पर है? ओरिजिन पे है. And the body starts moving with a speed of 10 meter per second. Okay, ये स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी. ये स्पीड कभी भी नहीं बदलेगा. इसका मतलब क्या हुआ?
बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड. हर एक सेकेंड में बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ठीक है, तो वी नो दैट स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या बन गया फिर? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. क्लियर? व्हाट इज स्पीड? इट इज 10. सो आई विल राइट डाउन 10 और टाइम को वेरिएबल ले लेते t. ठीक है, और यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं. लाइक सी हियर, दिस इज अ टेबल. यहां पर हम बोलेंगे टाइम और यहां पर हम बोलेंगे डिस्टेंस. ठीक है, सो व्हेन द टाइम इज 0 सेकेंड, टाइम 0 है, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 10 इंटू 0 कम्स आउट टू बी 0. और वो समझ में आता है ओरिजिन पे. ठीक है, अभी मोशन चालू हो गई. टाइम 1 सेकेंड. आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी? यहां पर 10 इंटू 1 कर देंगे, दैट इज 10. 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, मतलब 1 सेकेंड के बाद ये बॉडी आपको यहां पर मिलेगी, इस पोजीशन पे मिलेगी. सो आफ्टर 2 सेकेंड 10 2 ज़ा 20. आफ्टर 3 सेकेंड 10 3 ज़ा 30. आफ्टर 4 सेकेंड 10 4 ज़ा 40. तो 4 सेकेंड के बाद ये बॉडी यहां पर आ जाएगी. क्लियर? अभी यहां पर हम समझते हैं डेफिनेशन को यूनिफॉर्म स्पीड की. बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस. अगर मैं बोलूं यहां पर देखो टाइम इंटरवल कितनी है? टाइम इंटरवल, व्हाट इज अ टाइम गैप? 1 सेकेंड का टाइम गैप है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है. यहां पर टाइम गैप कितना है? 1 सेकेंड का टाइम गैप है. डिस्टेंस कितना कवर हुआ इन दोनों के बीच में? 10 से वो 20 पे आ गया. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी? 10 मीटर. सेम टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग 1 सेकेंड, इट्स अगेन 10 मीटर. टाइम इंटरवल 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज अगेन 10 मीटर. तो इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. मतलब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द यूनिफॉर्म स्पीड. अभी हम इसका ग्राफ भी देखेंगे. सी हियर, सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. y एक्सिस पे हम डिस्टेंस को प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे. सो यहां पर दिस इज 0, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 2 सेकेंड, दिस इज 3 सेकेंड, दिस इज 4 सेकेंड. यहां पर 10, 20, 30 एंड 40. ठीक है, सो लेट्स प्लॉट द पॉइंट फर्स्ट. 0,0, 1,10, 2,20, 3,30, 4,40, somewhere over here. So join them. So when you join them, you will find that there will be a straight line. Okay? इसका मतलब क्या हुआ? 0 से 4 सेकेंड तक अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? That the speed is uniform. 0 to 4 सेकेंड में क्या हो गया? स्पीड यूनिफॉर्म है आपकी. Are you getting? Okay. अभी हम आ जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे. यहां पर भी समझते हैं हम क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को समझाने के लिए मैं इनिशियली एकदम इजी एग्जांपल लूंगा, बाद में हम डिफिकल्ट एग्जांपल पे जाएंगे. ठीक है, फाइन. सो यहां पर भी बॉडी कहां पर है? अभी फिलहाल ओरिजिन पे है. यहां से बॉडी ने मूव करना चालू किया विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है बॉडी. ओके, लेकिन जैसे ही वो पोजीशन 20 पे पहुंच गया, उसने अपनी स्पीड डबल कर दी. अभी वो कितनी की स्पीड से जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. मीन्स, अच्छा इसको नेमिंग कर देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी. जब वो पोजीशन ए पे था तब उसकी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड. मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड अ बॉडी विल कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. लेकिन जब वो बी पे आ गया तब उसने अपनी स्पीड कितनी कर दी? 20 मीटर पर सेकेंड. मीन्स इन एवरी 1 सेकेंड बॉडी कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. ओके, तो जब मैं इसका टेबल प्लॉट करूंगा, एज वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, इनिशियली स्पीड कितनी है? 10 है, तो मैं यहां पर 10 लिख दूंगा. टाइम कितना हो गया? t. टाइम को वेरिएबल रखते हैं. ओके, तो यहां पर भी हम इसका भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट दिस इज t एंड दिस इज द डिस्टेंस. सो जब टाइम 0 है हमारा, ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी 0, ऑब्वियसली 0. ओके, ओरिजिन पे ये बॉडी. आफ्टर टाइम 1 सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी? 10 1 ज़ा 10. After 2 seconds, 10 2 ज़ा
20, सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इट्स 20, मतलब 2 सेकंड के बाद बॉडी पोजीशन बी पे पहुंच गया। अब पोजीशन बी पे बॉडी ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी एंड इट जंप्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की जगह अभी हम क्या लिखेंगे 20, ठीक है। सो अभी थर्ड सेकंड में, इन द थर्ड सेकंड, ओके, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 इंटू 3, कितना हो जाएगा आपका, ओके सॉरी, इन द थर्ड सेकेंड यहां पर देखो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके। इन नेक्स्ट 1 सेकेंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट नेक्स्ट 1 सेकेंड, फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड, अगले 1 सेकेंड के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, सी बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड, तो फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ओके, फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। सो 20 इंटू 1 दैट विल बी व्हाट 20, सो यहां से 20 मीटर कितना हो गया, बॉडी यहां पर आ गया, एट पोजिशन एट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 40 नाउ फॉर द नेक्स्ट 1 सेकेंड, ओके। अभी अगले 1 सेकेंड में, नेक्स्ट मतलब 4th सेकेंड में, इन द 4th सेकेंड, अभी हम 4th सेकेंड में आ गए, ओके। इन द 4th सेकेंड अभी सी 3rd सेकेंड पे बॉडी कहां पर था, एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, okay, in the next 1 second body again covers a distance of 20 मीटर, so body ने फिर से अगर distance 20 मीटर का कवर कर लिया तो 40 से वो कहां पर आ गया, 60 पे आ गया, क्लियर, 40 से कहां पर आ गया, वो 60 पे आ गया, तो यहां पर हम लोग मेंशन कर देंगे 60, क्लियर। यू कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑल्सो, लेकिन यहां पर कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। सी है, जब भी उसने स्पीड बढ़ाई, अभी उसने क्या कर दी, अपनी स्पीड बढ़ा दी उसने 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के बाद एक टाइम की न्यू काउंटिंग चालू हो जाएगी, मींस जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहां पर जैसे मैंने स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, सो टाइम का क्या ले लेंगे हम, 1 सेकेंड ले लेंगे, सो 20 इंटू 1 20, सो यहां से उसने डिस्टेंस 20 मीटर कवर किया, ओके। सो यहां से जब उसने डिस्टेंस 20 मीटर कवर किया तो वो कहां पर पहुंचेगा, 40 पे पहुंचेगा, ठीक है, फाइन। तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, सी हियर, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। सो लेट्स प्लॉट द ग्राफ 0 1 2 3 4, यहां पर लेट्स टेक एन इंटरवल ऑफ 10, सो दिस इज 10 20 30 40 50 एंड 60, ठीक है। तो मैंने यहां पर ये टाइम इंटरवल्स के साथ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। नाउ फर्दर वी विल सी, 0 पे कितना है, 0, सो आई विल प्लॉट 0 पे 0, 1 पे कितना हो गया 10, 2 पे 20, परफेक्ट, ओके। इसके बाद स्पीड चेंज हो गई, सी 3 पे कितना हो गया 40 यू विल फाइंड, 4 पे कितना हो गया 60, सो मीन्स यहां तक क्या था, ऐसे था। उसके बाद इफ यू विल सी द ग्राफ बैंड्स लाइक दिस, तो आपको ऐसे ग्राफ आएगा। क्या 0 से 4 सेकेंड तक एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं, 0 से 4 सेकेंड तक कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से 4 सेकेंड तक बॉडी क्या था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में था। इफ यू विल सी ओवर हियर, इन दिस टाइम इंटरवल बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, इन दिस टाइम इंटरवल बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अगेन 10 मीटर, but during this time interval body covers a distance of 20 meter, clear, means body covers unequal distance in equal intervals of time interval हर जगह 1 second है, लेकिन यहाँ पर distance covered by the body is 20 meter, clear। so this is all about uniform motion and non-uniform motion, okay students। now what happens, sometimes exam में हमें ये कैलकुलेट करने के लिए भी आता है कि आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आपको इसी ग्राफ से बताना है कि स्पीड क्या है, ओके। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम द ग्राफ, ओके। नाउ सी हियर, अब पहले इस ग्राफ को समझने से पहले लाइन ग्राफ को समझते हैं, ठीक है। नाउ सी हियर व्हाट हैपेंस एट दिस पोजीशन, लेट्स से ये पोजीशन हम वेरिएबल ले लेते हैं, x1 इज द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन of an object, okay, x2 is the final position of an object। यहां पर टाइम कितना था, let's say t1 is the time, और यहां पर टाइम कितना था, t2 as a time, ठीक है। सो हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, what is the formula for the speed,
डिस्टेंस कवर्ड, और हमने लास्ट क्लास में देखा था डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, x2 माइनस x1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, मतलब चलो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ पर टाइम हमारा 4 सेकेंड है और यहाँ पर हमारा टाइम 10 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमने कितना टाइम लिया, ऑब्वियसली 6 सेकेंड। कैसे मालूम किया हमने, 10 माइनस 4 दैट इज व्हाट 6 सेकेंड। यहाँ पर हमारा टाइम कितना चल रहा था, 4 सेकेंड। तो यहाँ से जब हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की, ओके, तब 4 सेकेंड टाइम हो रहा था, लेकिन जैसे हमने अपनी जर्नी खत्म की तो हमने वॉच देखा तो टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो ऑब्वियसली हमने अपनी जर्नी कितने टाइम में खत्म की, इन द 6 सेकेंड, करेक्ट। तो कैसे मालूम किया हमने, 10 माइनस 4, इसका मतलब हम क्या कर देंगे, T2 माइनस T1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा T2 माइनस T1। क्लियर, नाउ सी हियर वेरी केयरफुली। अभी x2 माइनस x1, x2 x1 हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ओके, इफ यू विल सी हमने डिस्टेंस को कहां पर प्लॉट किया है, y एक्सिस पे प्लॉट किया। तो मैं यहाँ पर x2 माइनस x1 की जगह क्या लिखूंगा, इट इज नथिंग बट व्हाट, y2 माइनस y1 फ्रॉम द ग्राफ आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि डिस्टेंस हमारा जो है वो y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे, सॉरी डिस्टेंस कहां पर है, y एक्सिस पे है। ओके, तो यहाँ पर y एक्सिस के टर्म्स में मैंने लिख दिया y2 माइनस y1, और टाइम कहां पर है हमारा, x एक्सिस पे है। सो आई विल राइट डाउन यहाँ पर x2 माइनस x1। यहाँ पर y रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस और x रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। इफ यू विल नो, ये फॉर्मूला किसका है मैथमेटिक्स में, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। किसका फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर मैं यहां पर इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो मुझे स्पीड मिल जाएगा। क्लियर, चलो ट्राई करते हैं हम। ओके, सी यहां पर मैंने दो कोऑर्डिनेट्स ले ली, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लो जो आपको पसंद है। मैंने ये वाली कोऑर्डिनेट्स ले ली और ये वाली कोऑर्डिनेट्स ले ली। इसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, वी नो दैट इट इज 4,40, और इसका वैल्यू कितना है, इट इज 0,0। ये हमारा x2, y2 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा x1, y1। तो यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2, द वैल्यू ऑफ y2 इज 40। So I'll write down over here the value of y2 is 40 minus the value of y1 it's 0. So 40 minus 0 upon the value of x2 it's 4. The value of x1 it's 0. So हमारा आंसर कितना है, 40 by 4 that is what 10 मीटर पर सेकेंड, और हमने यही तो स्पीड पकड़ी थी 10 मीटर पर सेकेंड। See, in this way you have to calculate. Okay, so remember always how to calculate the speed from distance time graph. The calculation of speed from the distance time graph is by calculating the slope of a line of distance time graph. Okay, चलो एक एग्जांपल यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग। Okay, इसको A बोल देते हैं, इसको B and this is C। सबसे पहले हम AB का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, फिर हम BC के लिए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप ऑफ AB। स्लोप ऑफ AB मुझे क्या देगा, स्पीड देगा, स्पीड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में कितना स्पीड चल रहा है, ए एंड बी के बीच में। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो b की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, वी नो दैट 2,20, और a की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी 0,0। यह हमारा x2 y2 हो जाएगा, और इसको हम लोग बोल देंगे x1, y1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, द वैल्यू ऑफ y2 is 20, द वैल्यू ऑफ y1 is 0, द वैल्यू ऑफ x2 it's 2, and the value of x1 is 0. So 20 minus 0, 20, 2 minus 0, 2. So your answer comes out to be 10 meter per second. Okay, I'll write over here also 10 meter per second. And we know that A से B के बीच में स्पीड कितनी थी, 10 meter per second थी। Correct? If you want, you can calculate for BC also. Obviously 20 meter per second आएगा। Clear this much? Okay, चलो BC का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। Slope of BC will give you speed between B and C. Okay, so B से लेके C तक जाएंगे अभी हम, टेकिंग एनी टू कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर y की C की कोऑर्डिनेट्स कितनी हो जाएगी 4,60, जिसको मैं x2, y2 बोल दूंगा,
इसको अभी रब कर देते फिलहाल, और जो b की कोऑर्डिनेट से इसको मैं बोल दूंगा x1, y1. पुटिंग दिस वैल्यू ओवर हियर, y2 minus y1 means 60 minus 20 upon x2 minus x1, that is 4 minus 2. 60 minus 20, 4, 4 minus 2, 2. So your answer comes out to be 20 meter per second. See, that is the speed. Clear? So this is all about uniform speed and non-uniform speed. But guys, you need to remember that if you are calculating the speed from distance time graph, you need to calculate the slope of a line of distance time graph. Okay? So this is the general formula. I'll write down the general formula somewhere over here. That speed is nothing but slope of a line of distance time graph. So remember this formula, very important formula. Clear? So please copy down this, be quick. Okay class, let's start with the next topic. Next topic is average speed. We will see average speed in very much detail and then we will jump on instantaneous speed. ठीक है, सबसे पहले एवरेज स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ total distance covered by the body, total distance covered by the body to the total time taken to cover this distance, to the total time taken to cover this distance, to cover this distance. ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ सो दैट यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ इट. ओके फाइन, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम एक नंबर लाइन लेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ नंबर लाइन, दिस इज द ओरिजिन 10, 20, 30, 40, 50, 60 and this is what 70. Unit will be meter. Okay, this is -10 and -20 and so on. ठीक है. For example, if a person starts his journey from origin, okay, उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की? origin. Okay, let's say this is at position A. Clear? He covers a distance of 20 meter and reaches at B. The time taken for this journey is 5 seconds. Let's take an example, 5 seconds. Okay, he takes a halt at B for 5 seconds. B पे हॉल्ट लिया उसने 5 seconds का. Then in the next interval he covers a distance of, he reaches at position C in the next 5 seconds. तो यहाँ पर भी टाइम कितना हुआ? 5 seconds. लेकिन C पे उसने हॉल्ट लिया, कुछ देर के लिए रुक गया. कितने टाइम के लिए रुक गया? Let's talk about 5 seconds. 5 सेकंड के लिए रुक गया. ओके, लेकिन फिर C से जब वो D आया तो उसने ये वाली जो डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में ट्रेवल की? 5 सेकेंड में ट्रेवल की. ठीक है. सो इफ यू विल सी व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर दैट पर्सन इन दिस एंटायर जर्नी. अगर मुझे एवरेज स्पीड पता करना है उस पर्सन की इन दिस एंटायर जर्नी, सो व्हाट विल डू, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज व्हाट? 70 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकन. टाइम टेकन में सारे टाइम आएंगे ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग टाइम ऑल्सो, प्लस जहां पर उसने हॉल्ट लिया है वो वाला टाइम भी आएगा. सो 5 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 5, 5 and 5. So you will find out it is 25. 5 5s are 25. 5 4s are 1, 14s are 70. So 14 by 5 is nothing but 2.8 meter per second. So ये उसकी पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड रही होगी. Okay, so this is the average speed. This is all about the average speed. Now we will see instantaneous speed in very much detail, and believe me, instantaneous speed is very important as from JEE point of view as well as from NEET point of view. Let's see instantaneous speed now. Okay, so write down the next topic in your notebook, that is instantaneous speed. Okay, so write down the next topic, that is instantaneous speed.
इंस्टेंटेनियस स्पीड. पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी एंड देन विल मूव टू द अंडरस्टैंडिंग पार्ट. ओके, सो इट इज डिफाइंड एज a speed of an object at an instant of time or at a point on a path. Okay, so it is defined as the speed of an object at any instant of time, okay, or at a point on a path. Okay, fine. So this is what instantaneous speed. Let's try to understand what is instantaneous speed. Okay, so to explain you the instantaneous speed, let's take an example. For example, is suppose a body is traveling with certain speed and the speed is non-uniform, and the speed is what? Non-uniform. If the speed is non-uniform, okay, means body हर टाइम पे अपनी स्पीड बदल रहा है. तो अगर हर टाइम पे बॉडी अपनी स्पीड बदल रहा है तो obviously the distance traveled by the body is also changing, because we know that distance is equals to speed into time. If speed changes in every interval of time, then distance also changes. For example, the distance covered by the body is given with the formula 4t square. हमें ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, इक्वेशन दी गई है. द डिस्टेंस ट्रेवल, y is the distance traveled by the body and t is the time. Okay, so therefore let's plot the graph. अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ग्राफ के पहले हमें टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, सो पहले हम टेबल देख लेते. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द टाइम इज 0 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कम्स आउट टू बी 0. जब t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा. When the time is 1 second, t का square, that is 1 का square will be 1, 4 ones are 4. When the time is 2, 2 का square 4, 4 fours are 16. When the time is 3, 3 का square 9, 9 fours are 36. When the time is 4, 4 का square 16, 16 fours are 64. Okay, so let's plot the graph. I am plotting the graph over here. So यहाँ पर हम y ले लेंगे, the displacement, or you can say distance, sorry, not displacement, distance, and t is the time taken. So यहाँ पर this is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. यहाँ पर हम intervals ले लेंगे 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, and this is 60. Let's plot the graph now. 0 पे कितना था? 0 था, ठीक है. 1 पे कितना है? 4, तो 1 पे 4 आ गया यहाँ पर समवेयर. 2 पे कितना है? 16, तो 2 पे 16 आ गया समवेयर ओवर हियर. 3 पे कितना है? 36, सो 3 पे आ गया 36 समवेयर ओवर हियर, या. और 4 पे कितना आ गया? 64, सो 4 पे आ गया सीधा 64, मतलब यहाँ पर कहीं पे होगा. ठीक है, सो व्हेन यू जॉइन दिस यू विल फाइंड दिस इज एन a graph. This is a curve. ये एक स्मूथ कर्व है, ठीक है, फाइन. सो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं. द क्वेश्चन इज यू वांट टू फाइंड आउट द स्पीड व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड. 2 सेकेंड पे हमारी स्पीड क्या होगी? ओके, सो यहाँ पर 2 सेकेंड पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी स्पीड मुझे पता करना है दैट एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द स्पीड. Speed is equals to question mark for us when the time is 2 second. Remember this thing. अगर हम 2 सेकेंड पे देखेंगे, this is a smooth curve. ये क्या एक स्मूथ कर्व है, ठीक है. और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. स्पीड कैसे कैलकुलेट की जाती है? स्पीड इज नथिंग बट व्हाट? फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? स्पीड इज नथिंग बट व्हाट? द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. बट स्लोप तो लाइन की निकलेगी, स्लोप ऑफ अ लाइन, राइट. यहां पर तो कर्व है, तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे? दैट इज द क्वेश्चन. सो सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सी. वी नो दैट फिजिक्स में हर चीज का सॉल्यूशन है. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? ओके,
सो यहां पर हम क्या करते हैं, सी मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं, 2 से 2.5 सेकेंड, तो 2 से 2.5 सेकेंड तक जाओगे, दिस इज 2 से 2.5 सेकेंड, ओके। सो 2 से 2.5 सेकेंड अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5 सेकेंड के बीच में एक कर्व लाई कर रहा है, दिस इज अ कर्व, ठीक है, ये एक स्मूथ कर्व है। सो 2 से 2.5 सेकेंड के बीच में आपको एक कर्व दिखेगा, सी मैं यहां पर इसको बना देता हूं ज्यादा डिटेल में। सो दिस इज 2 सेकेंड एंड दिस इज व्हाट 2.5 सेकेंड, क्लियर, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, वी विल टेक, दिस इज 2 सेकेंड ना, तो इसके बाद वाला जो टाइम होगा, लेट्स टेक वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, दैट इज 2.001 सेकेंड, 2.001 सेकेंड, समझ रहे हो कितना छोटा है। सो वी विल टेक 2.011 सेकेंड, मतलब ये वाला, इफ यू विल सी दिस टाइम गैप, ये 2 सेकेंड, इसके बाद वाला 2.001 सेकेंड है। सो यू विल फाइंड आउट दैट देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। टाइम गैप छोटा करने से क्या मिल गया हमें, स्ट्रेट लाइन मिल गई, ओके। अगर यहां पर देखोगे ये 2 सेकेंड है, अगर मैं यहां पर 2.001 सेकेंड लूंगा, तो यू विल फाइंड आउट कि यहां पर एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ओवर दैट, ओके। तो अभी हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई वहां पर। क्या अभी हम स्लोप पता कर सकते हैं, यस वी कैन कैलकुलेट द स्लोप, बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर टाइम 2 सेकेंड से 2.001 सेकेंड है, सो व्हाट इज अ चेंज इन टाइम टेकन, डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया, डेल्टा टी इज व्हाट द चेंज इन टाइम इंटरवल, ओके। टाइम इंटरवल कितना है, यू विल सी दैट ये 2 सेकेंड है, इसके बाद वाला 2.001 सेकेंड है। सो इफ यू विल सी 2.001 second minus 2, it comes out to be 0.001 second, which is approximately equals to 0. So change in time interval का वैल्यू हमें क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है for the instantaneous speed, clear। डेल्टा टी का वैल्यू क्या लेना पड़ता है, 0 लेना पड़ता है, approximately equals to 0 लेनी पड़ती है, ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करना है तो, ओके। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कर्व है तो हम डायरेक्टली स्लोप का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो स्लोप का फॉर्मूला कभी लगा सकते हैं, जब लाइन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो लाइन कभी अवेलेबल हो जाएगी, जब मैंने टाइम गैप बहुत छोटा रखा है, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम गैप बड़ा होगा, टाइम इंटरवल बड़ा होगा, सो यू विल फाइंड आउट देयर विल बी अ स्मूथ कर्व, एक कर्व मिलेगा। अगर हमने टाइम को छोटा रखा, सी हियर, यहां पर एक और एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ भी होगा 2.2 सेकेंड, लेकिन इसके बाद वाला, जस्ट इसके बाद वाला सेकेंड, इफ यू विल सी यहां पर देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर। अगर हम टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखेंगे तो चाहे कर्व कैसा भी हो, हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल क्या करते हैं, बहुत कम रखते हैं, लगभग 0 के आसपास रखते हैं, ठीक है। डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, आई राइट डाउन ओवर देयर, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ओके। वी नो दैट स्पीड इज व्हाट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम, ठीक है, fine। So now here what is delta y, delta y is nothing but, see here 2 सेकेंड पे कुछ, यहां पर अगर मैं देखूंगा, ये हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे, मैंने इसका एक छोटा सा हिस्सा यहां पर बना दिया है। 2 सेकेंड पे मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा और 2.001 सेकेंड पे मुझे कुछ डिस्टेंस मिलेगा y2। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज योर डेल्टा y, y2 माइनस y1, एंड डेल्टा टी इज दिस डिफरेंस, ये 2 सेकेंड इज योर t1 एंड इसकी जो बाद वाला है दैट इज t2, दैट इज 2.001 सेकेंड। तो जो हमारा डेल्टा टी है वो t2 माइनस t1 है, t2 माइनस t1 मतलब 2.001 माइनस 2, दैट इज व्हाट 0.001 सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, क्लियर। सो ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी टाइम बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा वाई डिस्टेंस कवर किया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्लियर। लेकिन मोस्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस वन, dy बाय dt, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द जनरल फॉर्मूला
in calculus to calculate the slope at a given point. Slope of a line, or you can say slope of a tangent at a given point. Slope of a tangent at a given point. Now what do you mean by this slope of a tangent at a given point? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे टाइम 2 सेकेंड पे पता करना है कि व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड का पॉइंट मार्क करेंगे और वहां से एक टेंजेंट बनाएंगे लाइक दिस. इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्पीड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड. इसी टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो क्या होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द टाइम इज 2 सेकेंड. ओके, तो ये कैलकुलस में दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, दैट इज dy बाय dt. क्लियर. तो अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे स्पीड पता करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल 3 सेकंड पे मुझे पता करना है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो यहां से मैं एक लाइन बना दूंगा दैट इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट, और उस टेंजेंट का स्लोप पता कर दूंगा. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड. ठीक है. तो मोस्टली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, dy बाय dt. ओके, किसी भी पॉइंट पे अगर स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो यहां पर आ जाते हैं हम लोग, दैट स्पीड इज नथिंग बट dy बाय dt. वी नो दैट. सो d बाय dt, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, इट्स 4t स्क्वायर. तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4t स्क्वायर. सो इसका जो डेरिवेटिव हो गया, सो इट कम्स आउट टू बी 80. सो स्पीड का ये जनरल फॉर्मूला हो गया, स्पीड इज इक्वल्स टू 80. सो एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, स्पीड कितना होगा हमारे पास, 8 into 2, that is what, 16 meter per second. When at t is equals to 3 second, तो स्पीड कितना होगा at this point, 8 into 3 is equals to what, 24 meter per second. So this is the speed. Clear? So this topic is all about instantaneous speed. I hope you got the clear idea what is instantaneous speed and how to calculate it. Okay? इसके ऊपर हम कुछ numericals करेंगे. Now we will calculate average speed in different situation, because ये numericals में बहुत काम आता है. Average speed in different situation. तो हर बार फॉर्मूला बनाने से अच्छा कि हम एक ही बार फॉर्मूला बना ले. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो गड़ी गड़ी फॉर्मूला बनाने से अच्छा हम एक फॉर्मूला अभी बना देते हैं. ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी विल सी एवरेज स्पीड इन द डिफरेंट सिचुएशन. व्हाट इज द फर्स्ट सिचुएशन, अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस, अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस विथ डिफरेंट स्पीड. एक बॉडी है जो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विद डिफरेंट स्पीड. ओके, मतलब हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया होगा और स्पीड दिया होगा, लेकिन टाइम नहीं दिया होगा. ठीक है, तो उस केस में मुझे पता करना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल, चलो एग्जांपल के लिए ले लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज ए, बॉडी फाइनली कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया. सी और डी पोजीशन पे उसने अपनी स्पीड बदल ली. जैसे कि यहाँ पर स्पीड थी उसकी v1, यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई v2, और यहाँ पर उसकी स्पीड हो गई v3. और ये जो डिस्टेंस था d1, ये जो डिस्टेंस था d2, और ये जो डिस्टेंस था d3. ठीक है, रिमेंबर क्लास, हमें v1, v2, v3, d1, d2, d3 क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन टाइम नहीं दिया होगा. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टाइम मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है. चलो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए से सी तक कवर करने के लिए t1 टाइम लग गया, सी से डी तक कवर करने के लिए t2 टाइम लग गया, डी से बी तक कवर करने के लिए t3 टाइम लग गया. ओके, सो वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. करेक्ट. तो यहाँ पर t1 जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज d1 अपॉन v1. t2 जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, d2 अपॉन v2. t3 जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, d3 अपॉन v3. सो डिफरेंट टाइम्स भी मिल गए हम लोग को. अभी हम लोग को क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, d1 प्लस d2 प्लस d3. सो d1 प्लस d2 प्लस d3,
what is the total time? T1 plus T2 plus T3. So D1 plus D2 plus D3 upon the value of T1, B1 by V1, the value of T2, D2 by V2, the value of T3, D3 by V3. So that is the formula for average speed. For this situation. ठीक है, अभी जैसे कि ये सिचुएशन हमने जो एनालाइज की है, इसके अलग टाइप की सिचुएशन भी आती है. अ बॉडी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल. ओके, यहां पर ही देख लेते हैं हम लोग. दिस इज द सेकेंड केस. अ बॉडी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस, बॉडी कवर्स सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया with different speed during different time intervals. ओके, मतलब यहां पर क्या होगा, हमें वेलोसिटी स्पीड और टाइम दिया होगा, हमें क्या पता करना है? एवरेज स्पीड पता करना है. ओके, सो हम कैसे पता करेंगे? सीयर यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल ए से बी तक बॉडी गया. ओके, यहाँ पर उसने सी पे और डी पे अपनी स्पीड बदल दी. यहाँ पर V1, यहाँ पर V2 और यहाँ पर V3. ये बॉडी की V1 स्पीड होगी फॉर अ टाइम T1. T1 टाइम के लिए उसकी स्पीड V1 रही होगी. ओके, T2 टाइम के लिए उसकी स्पीड V2 रही होगी और T3 टाइम के लिए उसकी स्पीड V3 रही होगी. तो पहले डिस्टेंस और वेलोसिटी डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ था, अभी स्पीड और टाइम दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पर लेट्स टेक, यहाँ पर डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ D1, यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ D2 और यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो D3. हमारे पास D1, D2, D3 नहीं है. ठीक है, लेकिन स्पीड और टाइम दिया हुआ है हम सबका. ठीक है, so can I say that we know that speed is equals to distance upon time, so distance is equals to speed into time. So therefore I will write down D1 is equals to V1 into T1, D2 is equals to V2 into T2 and D3 is equals to V3 into T3. ठीक है, to calculate the average speed is what? Total distance upon total time. What is the total distance? D1 plus D2 plus D3. Total time T1 plus T2 plus T3. D1, D2, D3 की वैल्यू पुट करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड. ठीक है, so for two different scenarios we have two different formulas, so we will use these formulas in the numericals. It will really very helpful. Next topic we will see velocity, very important topic. Okay, velocity और speed में क्या फर्क है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है. वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, लेकिन स्पीड डायरेक्शन नहीं बताता था. ओके, लेकिन वेलोसिटी हमें डायरेक्शन बताएगा. सो वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो दिस इज अ डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. मीन्स व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके, स्पीड का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. Okay, as we know that displacement is a vector quantity, so velocity will be a vector quantity. So I'll write down that velocity is a vector quantity. Okay, SI unit of velocity, SI unit of velocity is meter per second. Okay, एंड यू नो द डायमेंशंस ऑल्सो. हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में भी पढ़ा है. डायमेंशंस फॉर द वेलोसिटी इज L1 T⁻⁻1. ओके,
So this is the general introduction of the velocity. Now again, like speed, velocity is also having two types. Velocity के भी कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है. Types of velocity, we know that speed के कितनी टाइप्स है? दो थी. That is what? Uniform velocity and non-uniform velocity. The two types of the velocity is uniform velocity and non-uniform velocity. ठीक है. ऑलमोस्ट स्पीड में जो यूनिफॉर्म स्पीड था और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, उनकी जो डेफिनेशन थी, दैट इज अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन वेलोसिटी में क्या होगा? डिस्टेंस को रिप्लेस कर दो डिस्प्लेसमेंट से, यू विल गेट द डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. A body covers unequal displacement in equal intervals of time. ठीक है, तो ये डेफिनेशन बन गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन, बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ओके, डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा बॉडी का, ओके, सो यहाँ पर हमें पता है वेलोसिटी मिलेगी. इफ डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इन अ सर्टेन टाइम देन वी विल गेट द वेलोसिटी. बट इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एंड इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट टाइप ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. This is also very important part. Formula is almost same, बस सिर्फ velocity एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, ओके, लेट्स सी दैट. नेक्स्ट पार्ट, एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो of total displacement to the total time taken. मैं आपको एवरेज वेलोसिटी एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सो यू विल गेट द क्लियर पिक्चर ऑफ इट. ओके, फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज अ नंबर लाइन, this is the origin, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and the unit will be meter. ठीक है, suppose right now a body is at position A, it will reach at position B in 5 seconds. A से B डिस्टेंस जो A से B डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल हुआ है वो 5 सेकेंड में. At B it takes a halt of 5 seconds. And then it moves towards C in the next 5 seconds. And at position C, it will take a halt of 5 seconds again, and then moves to the position D in the next 5 seconds. So in this case, what is the displacement? We know that what is the formula for the displacement? Final position minus initial position. What is final position? 70. What is initial position? 0. So 70 minus 0. So 70 meter. Time taken to cover this journey, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. It becomes 25 seconds. So therefore velocity for this part is nothing but total displacement is what? 70 meter and total time taken is 25. So it comes out to be 14 by 5, that is how much? 2.8 seconds. Clear? ओके, सो वेलोसिटी मुझे मिल गई 2.8 मीटर पर सेकेंड, नॉट सेकेंड, 2.8 मीटर पर सेकेंड. सो दैट इज योर वेलोसिटी.
correct, for this average velocity for this entire journey. Now let's make a twist now. चलो एक ट्विस्ट लेते हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल अभी बॉडी कहाँ पर आ गया, एट पोजिशन ई. कहाँ पर आ गया, एट पोजिशन ई. ए बी सी डी ऐसे गया, फिर बाद में पोजीशन ई पे आ गया. अच्छा, डी से ई तक आने में, डी से ई तक आने में, मतलब यहाँ डी से ई तक आने में उसे लग गए 20 सेकेंड. एग्जाम्पल के लिए ले लो, कितने सेकेंड लग गए, 20 सेकेंड्स. ओके, लेट्स मेक इट 25. कम ऑन, लेट्स मेक इट 25. ओके, सो 25 सेकेंड्स लग गए उसको डी से ई तक आने में. सो इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? So this is the first scenario, this is the second scenario. इस केस में displacement कितना होगा? The displacement, we know that displacement is final position minus initial position. What is your final position? The final position is minus 20. What is your initial position? That is 0. So minus 20 meter. That is your displacement. What is total time taken to cover this journey? Total time taken 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 25. So you will find out the total time taken is 50 seconds. So in this case, what is the average velocity? So average velocity in this case is total displacement, that is minus 20 upon total time, that is 50. So 0 get cancelled, so minus 0.4 meter per second. So this is the average velocity. Clear? So to cover the entire journey, this is your average velocity, minus 0.4 meter per second. And guys, believe me, this is very important to understand why negative sign is over here. यहाँ पर negative sign क्यों आ गया? Okay, so negative sign indicates what is velocity. अच्छा, negative sign को थोड़ी देर साइड में रखते हैं. What is velocity? Velocity is a vector quantity. Velocity अगर vector quantity है तो velocity क्या represent करेगा? Direction भी represent करेगा. Okay, तो negative sign यहाँ पर direction ही represent कर रहा है. कैसे? Negative sign indicate कर रहा है क्या? कि जो बॉडी की फाइनल पोजीशन है, या फिर बोल सकते हो जो बॉडी का फाइनल पोजीशन है, या फिर बॉडी जिस डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी मूव किया है, ओके, दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब बॉडी की जो फाइनल पोजीशन होगी, रिगार्डिंग बॉडी की जो फाइनल पोजीशन होगी वो स्टार्टिंग पॉइंट की लेफ्ट साइड होगी. स्टार्टिंग पॉइंट की लेफ्ट साइड होगी. इसके लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव था. अगर हम ऊपर देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव में. इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है, ओके, वो कहां पर होगी, टुवर्ड्स द राइट. मतलब बॉडी राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है. इसका मतलब अगर फाइनल पोजीशन राइट की तरफ होगी तो इसका मतलब बॉडी राइट की तरफ ट्रैवल कर रहा है. अगर फाइनल पोजीशन लेफ्ट की तरफ होगी, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा है. क्लियर? तो लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया, माइनस साइन. यहाँ पर राइट की तरफ जा रहा था, इसके लिए यहाँ पर क्या था, प्लस साइन. तो इस तरीके से वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज द वे दैट वेलोसिटी रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव साइन मीन्स व्हाट, अ बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स राइट. सो वेलोसिटी ने हमें मैग्नीट्यूड तो दे दिया, प्लस डायरेक्शन भी दे दी. दैट्स व्हाई द वेलोसिटी इज नोन एज अ वेक्टर क्वांटिटी. Clear? Okay. Next we will see instantaneous speed. Let's make it quickly. The instantaneous speed. Instantaneous speed. Instantaneous velocity, not speed. Speed तो देख चुके हम. Instantaneous velocity is same as that of instantaneous speed. बस instantaneous speed में distance था, यहाँ पर displacement होगा. ठीक है? So let's talk about instantaneous velocity. Okay. So instantaneous velocity. Instantaneous velocity. Okay, let's see what is the instantaneous velocity. It is a velocity at any instant of time. It is a velocity at any instant of time or at a point on its path. Its path. ठीक है? That is nothing but what? Your instantaneous velocity. So it is a velocity at any instant of time or at a point on its path. Like example के लिए ले लेते हैं. See here.
पहले फॉर्मूला देख लेते, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट्स डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। रिमेंबर स्पीड के केस में हमने डेल्टा वाई को डिस्टेंस बोला था, यहाँ पर डेल्टा वाई डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, अपॉन डेल्टा टी। और हमने डेल्टा टी को क्या रखा था, मैंने वहाँ पर आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया था कि डेल्टा टी को हम 0 क्यों रखते हैं, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू, वी विल यूज दिस फॉर्मूला dy बाई dt, ओके। सब कुछ सेम है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इफ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 6t क्यूब, ये y की हमारी इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की। अगर मुझे पता करना है व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is equals to dy by dt. So what is the value? Y का value 4t square minus 6t cube, which is equals to 4 derivative of t square minus 6 derivative of t cube. So t square का derivative 2t, 4 2 जा 8t, t cube का derivative 3t square, 6 3 जा 18t square. क्लियर? तो हमें वेलोसिटी का जो था फॉर्मूला ये मिल गया, वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई हमें। सो हम टाइम की वैल्यू पुट करके t इज इक्वल्स टू 2 पुट करके हम वेलोसिटी निकालेंगे। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन v इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2, ये कभी कैलकुलेट करें जब टाइम हमारा 2 सेकेंड है। सो 8 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 2 का स्क्वायर, सो 8 2 ज़ा 16, 18 2 का स्क्वायर 4, सो 16 माइनस 72, क्लियर? Okay, so 56 meter per second. So that is your velocity, or minus 56 meter per second. So v comes out to be minus 56 meter per second. So this is the velocity when the time t is equals to 2 seconds. So in this way we will calculate the instantaneous velocity.